Good morning, everyone, and welcome to the 8th edition of our webinar on Investor Profit Series. In the previous webinars, the fundamental research team had spoken about common sense investing along with the importance of ratios that you should look out for. They also highlighted a few essential stock scanning methods that you can use to filter out good performing companies. In this webinar, our fundamental research team will be speaking on a topic that is a lot more personal: our emotions, and how they can trick us into making loss making decisions. Emotions such as greed, fear, excitement, and irrational exuberance can contribute to market psychology at any given point in time and can cause huge losses of any kind to any investor. Through this webinar, we hope to guide you and identify and tackle these loss making impulses and how you can turn them into your favor. Before I formally introduce our fundamental research team leads, I would like to mention a bit about our company, BP Wealth. We are a 70-year-old organization focused on creating wealth for investors through advisory research, PMS, and stockbroking services. Even in times like these, our excellent research desk has generated decent returns for our investors. On the webinar today, we have Swapnil Shah, Head Fundamental Research at BP Wealth. A qualified chartered accountant, Swapnil has over 10 years of experience in the field of investments, research, and has been associated with us, BP Wealth, since 2009. Swapnil, over to you. Few days the buyers are dominant, few days the sellers are dominant. So we have to identify, who is on the stronger side. अभी तेजी चल रही है या मंदी चल रही है, और जो strong रहेगा, we have to be with them. So it's all about staying with the stronger force. If you have traveled in Mumbai local train, अगर आपको स्टेशन पे उतरना है, तो मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब मलाड स्टेशन मुझे एक बार उतरना था और मैं बहुत टेंशन में था कि इतना भीड़ है, मैं कैसे उतरूंगा. तो समवन सजेस्टेड मी, जस्ट रिलैक्स हो जाओ और कीप योरसेल्फ लूज और शांति से खड़े हो जाओ, तुम ऑटोमेटिकली उतर जाओगे. मैंने बोला ऐसा कैसे? वो तो फोर्स ही इतना रहेगा पब्लिक का कि तुम खुद ही उतर जाओगे अपने आप. तो मार्केट में जो फोर्सेस होते हैं, अपने को ट्राई करना है कि we go along with the force rather than opposing the force. So the crux is identifying the dominant force, and the game lies in कि अभी dominant force कौन सा है. So the people who understand this will be the winners. Short term trading में it has been said that 95% people lose money and 5% people gain money. So what are those qualities that 5% people have, and what are those qualities that 95% people have? Let's try to analyze that. अगर उसको समझेंगे, then we will able to decide, अपने को 5% कैटेगरी में रहना है या 95% कैटेगरी में रहना है. So lot of depends on psychology also. So ultimately emotions drive, and let's look upon how market evolves. Currently अपना जो मार्केट है वो भी आप देखोगे तो लास्ट 3 वीक्स में that was a sharp rally. 9,000 से निफ्टी 10,300 हो गया. Then suddenly in last 2-3 days there was a sharp profit booking. So this is the fight between bulls and bears. तो अभी अपने को कौन से साइड रहना है, मंदी में रहना है या तेजी में रहना है? Let us go through the typical market cycle emotion. इंडिया की every market has a cycle. अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है, साइडवेज रहता है. तो कैसे ये मार्केट एक इमोशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है. स्टार्टिंग में एक ऑप्टिमिज्म रहता है, धीरे धीरे जैसे भाव बढ़ता है तो अपन एंथुजियास्टिक हो जाता है. वी लाइक व्हेन प्राइसेस मूव अप, देन देयर इज अ फास्ट एक्सिलरेशन इन मार्केट. जैसे जैसे भाव और तेजी से बढ़ते हैं, धीरे 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 और यूफोरिया सेटअप हो जाता है. एंड एंड में देयर इज अ यूफोरिया. ये यूफोरिया क्या रहता है? बेसिकली जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं ना, देन यू आर वेरी रिलैक्स, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी तो ये तेजी मार्केट ही है. वी फॉरगेट द फंडामेंटल्स. बेसिक अगर कंपनी का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये डिजर्व करता है कि नहीं इतना तेजी. ये मोस्टली अपन भूल जाते हैं व्हेन द मार्केट इज इन एक्सट्रीम यूफोरिया. इफ यू वांट टू अटेंड अ पार्टी, तो ये जो ऑप्टिमिज्म फेज है ना, वो स्टार्टर फेज रहता है. जो एंथुजियाज्म और एक्सिलरेशन है वो मेन कोर्स रहता है, और जो यूफोरिया रहता है ना, वो डेजर्ट रहता है. तो पार्टी में जाना हो तो स्टार्टिंग में जाना चाहिए या एंड में जाना चाहिए?
ऑब्वियसली पार्टी हमेशा शुरू में अटेंड करनी चाहिए, जब भी डेजर्ट मिलने वाला होता है तभी अगर पार्टी में एंटर करोगे तो आई थिंक तुम बुरा फंसोगे. बट प्रॉब्लम इज मोस्टली people like us, we try to catch that last move, and जब भी वो यूफोरिया रहता है तभी we forget everything, and ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट बेस्ट है, इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, फटाफट पैसा बनेगा. And that is where the trap is. And then gradually what happens, the bull market ends, and then comes a U turn, and तभी फर्स्ट जो लेग डाउन रहता है तो वी बिलीव के नो नो अभी तो बुल मार्केट इंटैक्ट है, ये तो थोड़ा करेक्शन है, अभी वापस मार्केट घूमेगा. जैसे मार्केट और गिरेगा यू वोंट अग्री, यू फील नहीं नहीं ये बुल मार्केट है, वापस बाउंस होगा होगा. एंड देन देयर इज पेसिमिज्म, एंड में देयर इज पैनिक, अल्टीमेटली यू लूज ऑल द होप. एंड इधर अपन कंफर्मेशन होता है कि नहीं ये मार्केट तो गया, ये टाइम तो मंदी अलग ही है, ये टाइम कुछ नहीं बचेगा, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट. व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ फीलिंग, दैट इज एक्चुअली व्हेन द बेयर मार्केट एंड्स. तो ये टिपिकल इमोशन साइकिल है. Human beings are very attached to the day-to-day emotions, and market rewards very badly if if you react, if you are very emotional with the greed and emotions. So those people who can control their emotions will always be successful in markets, and those who just sway with the emotions will be shattered badly. So ये टिपिकल एक साइकिल है. नाउ जस्ट कंपेयर योरसेल्फ कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, यूफोरिया में बहुत एंटर कर दिया और पैनिक में बेच दिया. कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आपके रहेंगे, वेर यू कोरिलेट. कोई स्टॉक बाय किया रहेगा जब भी वो बहुत अच्छे न्यूज आ रहे थे तभी बाय किया रहता था, और अल्टीमेटली देन धीरे 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 स्टॉक्स नीचे आ गए रहते हैं. तो व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई दोस 95% पीपल लूज मनी एंड ओनली 5% गेन? दैट इज वेयर द क्रक्स इज. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपने को अगर वो 5% में रहना है तो अपने को क्या करना चाहिए. तो स्टेप बाय स्टेप वी विल गो थ्रू हाउ टू shoot be on in that every 5% category. they shoot on. Hello, am I audible? Yes, continue please. Okay. So what we are going to cover today, I want to cover few topics today which would be helpful in your investing life, in your trading life. Basically, first and foremost important thing is, how to avoid and minimize your losses. Losses definitely होने वाले हैं. If you trade in the markets, छोटे छोटे losses definitely होंगे. But the main idea is, बड़े losses नहीं होने चाहिए. अगर if we try to control this aspect of not losing big money, then I think you would be successful in markets. Your strike rate, like अगर तुम 10 trades कर रहे हो तो तुम्हारे 7 या 6 या 7 stocks भी राइट जाएंगे, then also you are better off. But the problem is कि एक दो losses इतने बड़े हो जाते हैं कि वो 6-7 profit trading ideas का पूरा profits लेके जाता है. So how to avoid losses, we'll try to understand that. Mind management, as I made you understand about the psychology. Basically in trading, mind is your biggest enemy, and how mind management is crucial, I'll try to understand that. And how to take advantage of price action. Basically nowadays there is so much movements across markets, because now the technology plays a big role. सबके पास सब news forward हो जाते हैं. Because of the use of this machine algo trading, the reaction in the price movements are exuberant. So how we will take advantage of that, and of that extreme price action, that we will going to cover today. Now let's discuss this each topic one by one. And first and foremost thing is how to avoid losses. Basically I want to start with an example. Suppose some of your relative or your friend has asked for a 10 lakh loan for starting his business, and he requests you कि मुझे एक temporary loan चाहिए 1 साल के लिए, and I will give you interest and then I will repay as soon as possible. So you on a friendly note, or out of relation, you give him 10 lakh loan, and then he's starting his business, he's regularly paying his loan, his interest. And then what happens after a period of 9 months, suddenly उसका interest देने का बंद हो जाता है. So you try to find out ये क्या हुआ, तुम्हारा पैसा नहीं मिला मुझे.
तो ही सेज अभी बिजनेस मॉडल जो स्टार्ट किया था somehow it's not working out and थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, आई थिंक यू नो टाइम लगेगा रीपे करने में. देन यू स्टार्ट टू गेट अलर्ट, राइट? यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई ये मेरा पैसा डूबा तो नहीं देगा ना, मुझे मेरा प्रिंसिपल रिटर्न मिलेगा या नहीं. So this is such a simple example. You will try to find out, you know, in his family, you will be concerned about your 10 lakhs. So exactly I want to refer to here the point is when you are investing in markets, जब भी तुम पैसा लगाते हो तो तुम्हें वो कंसर्न होनी चाहिए. तुम वो पैसा कोई कंपनी को दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए. तो अगर तुम्हें रिटर्न नहीं मिल रहा है, अगर वो भाव तुम्हारे फेवर में नहीं जा रहा है, तो एक कंसर्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. प्रॉब्लम, नो वन इज बॉदर्ड. प्राइस ऊपर नीचे होता है, पीपल जस्ट टेक कैजुअली के मार्केट्स है, आ जाएगा ऊपर. सो दिस अप्रोच इज नॉट गुड. यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्यों ऐसा हो रहा है. मार्केट गिर रहा है इसके लिए हो रहा है, या कंपनी स्पेसिफिक कोई इवेंट है इसके लिए हो रहा है, सेक्टर न्यूज है. तो इम्पोर्टेंट थिंग इज वो अलार्म होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है एंड यू नो यू जस्ट कांट बी इररिस्पॉन्सिबल. नाउ लेट्स सी सम पॉइंट्स यू नो दैट ये ट्रैप में क्यों आते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नो इज डोंट बाय इन यूफोरिया. जनरली बिग लॉसेस तभी होते हैं जब भी यूफोरिया में कोई चीज बाय किया हुआ रहता है. यूफोरिया मार्केट वैसा होता है ना, यू नो सब चीज सही लगती है एंड फटाफट यू नो इन 1 वीक द मार्केट्स मूव अप 5% 10%. तुम्हारे स्टॉक्स में सर्किट लगते हैं एंड यू फील के ऐसा कोई यू नो दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड वो यूफोरिया फेज इज वेयर यू नो योर कॉमन सेंस गोज असाइड. सो द प्रॉब्लम इज इफ यू बाय कंपनीज इन सच टाइम, प्रोबेबली यू नो एंड रिजल्ट हमेशा लॉस रहता है. गो एंड इवेल्युएट योरसेल्फ. यू नो जो भी कंपनीज में आपको लॉसेस है, एक बार ये वेबिनार के बाद खुद एनालाइज करना कि कौन से प्राइस पे लिया था, तभी कोई यूफोरिया था क्या, तभी कोई न्यूज था क्या. लेट्स जस्ट गिव यू अ लाइव एग्जांपल. मैं आपको ये समझाता हूँ कि लाइव कैसे यूफोरिया में वी गेट स्वेड अवे. दिस इज an example of you know Reliance Communication. This was one of the you know trader favorite stock and 2017 में ऐसे न्यूज आया था कि मुकेश भाई is going to buy some assets of Arcom. So people were so bullish and you know एकदम फैंसी क्रिएट हो गया था कि अगर मुकेश अंबानी बाय कर रहा है और आरकॉम में तो बहुत बड़ी तेजी आएगी. नाउ लेट्स जस्ट सी द लाइव चार्ट. दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन. ये 5 साल से ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है. इसका प्राइस था ओवरऑल 2015-16 में यू नो 600 रुपया 800 रुपया. वन साइड ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है. तो पहला चीज है हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखो कि ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है स्टॉक का. ये देखो ये सिंपल ये चार्ट दिखा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में. नीचे 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 ही जा रहा है. फिर सडनली ये न्यूज आता है कि शायद मुकेश भाई कुछ बाय करने वाले हैं. तो ये लास्ट लेग में इधर सो मच यूफोरिया डेवलप हो जाता है कि पीपल फॉरगेट द कॉन्टेक्स्ट के ओवरऑल स्टॉक कौन से कॉन्टेक्स्ट में था. और ये देखो लास्ट एक वीक में स्टॉक यू नो बाउंस होता है. एक वीक में फ्रॉम 15 रुपीज इट गोज अप टू 40 रुपीज. और ये जो लास्ट लेग है 40 रुपीज, उस दिन न्यूज आता है कि मुकेश भाई सोच रहे हैं बाय करने का. एंड हियर इज वेयर द ट्रैप इज. यू नो पीपल थिंक ये 800 वाला अगर आज 40 में मिल रहा है देन व्हाई नॉट बाय. एंड यू नो एंड रिजल्ट क्या होता है, यू विल बी वेरी सरप्राइज कि इसके बाद क्या हुआ. ये न्यूज पब्लिक में आ गई इधर कि ये स्टॉक मुकेश भाई शायद सोच रहे हैं बाय करने का. एक्सट्रीम यूफोरिया. एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस एंड द स्टॉक इज एट यू नो 50 पैसा टुडे. वो जो जिस दिन न्यूज आया उसके बाद वो स्टॉक 2 रुपया ऊपर भी नहीं गया और उसके बाद वन वे द स्टॉक इज डाउन एंड इट इज जस्ट एट 50 पैसा टुडे. सो यू नो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट के ओवरऑल स्टॉक कौन से कॉन्टेक्स्ट में है. जिस दिन न्यूज आता है आस्क योरसेल्फ कि एम आई द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस न्यूज और एम आई द लास्ट पर्सन टू गेट दिस न्यूज. अगर न्यूज़पेपर में जिस दिन न्यूज आ गया दैट मीन्स होल वर्ल्ड नोज के क्या हो रहा है. एंड जो स्मार्ट हैंड्स है ना वो लोग तभी एग्जिट कर रहे होते हैं. एंड पीपल हु ड्राइव इनटू यूफोरिया इनटू इमोशंस दे ऑल बाय दिस. तो दिस इज अ ट्रैप.
So what we learn today is see the overall context and then take a rational decision, मुझे ये करना है या नहीं. You know, जिसको पैसा कमाना है आरकॉम में कमाने दो. You think yourself rationally कि ये risk reward favorable है क्या नहीं. If you are not comfortable, छोड़ दो. दूसरे स्टॉक में कमा लेंगे. But people, you know, generally ये कि इसमें ही कमाना है. ये फटाफट भागेगा, फास्ट पैसा बनेगा. Just imagine जिसने 40-30 रुपीस में लिया होगा, कभी उसका भाव नहीं आया. एंड आई एम 200% श्योर कि जिसने इधर बाइंग किया रहेगा उसने कभी लॉस बुक नहीं किया रहेगा, और आज उसके पोर्टफोलियो में यू नो स्टॉक इज जस्ट लैंग्विशिंग. सो डोंट बाय इनटू व्हेन देयर इज एक्सट्रीम यूफोरिया. चेक द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली यूफोरिया का इंडिकेशंस क्या रहता है, यू नो, वो तुम्हारा सब्जी वाला, दूध वाला अंकल, आंटी, मामा, मामी, सब लोग स्टॉक एडवाइस देते हैं. दिस इज अ सिंपल इंडिकेशन, यू नो, मार्केट टॉप आउट होने वाला है. दूसरे यूफोरिया के इंडिकेशंस क्या है, जब बहुत सारे आईपीओज आते हैं, यू नो, दैट टाइम बी अलर्ट कि इतना सारा कंपनी सडनली आईपीओ क्यों आ रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू यूज दिस इमोशन ऑफ यूफोरिया एंड गेट मनी. गो बैक इन हिस्ट्री एंड चेक, जब भी बहुत सारे आईपीओज आते हैं, मोस्टली उसके 2-3 महीने बाद मार्केट टॉप आउट हो जाता है. एंड रिसेंटली, यू नो, जब भी 6 महीने पहले आईपीओ आ रहे थे, एक आईपीओ था प्रिंस पाइप करके, एंड 15 brokers had given a subscribe rating, and you will be surprised, like, we were the only broker, you know, I was not comfortable with the management quality and the valuations, and we were the only broker who had given avoid rating, and the stock had, you know, opened 20% down. तो ये जो यूफोरिया रहता है ना, उसका बहुत लोग फेवर में यूज करते हैं एंड बहुत लोग फंस जाते हैं. यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी. मार्केट में ना एवरी डे तुमको स्टोरीज मिलेंगी. यू नो, ये कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हिट. मुझे पता है, ये कंपनी, मेरे अंकल इधर काम करते हैं, वो बोल रहे थे कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है, ये शेयर तुम ले लो. मैं बोल रहा हूँ तुमको 2-3 साल रखो, ये स्टॉक बहुत चलेगा. यू नो, डिफरेंट स्टोरीज प्ले आउट, और इतनी फैंसी स्टोरीज रहती है कि यू ट्रेंड टू बिलीव इन दैट. अपन बेसिक कॉमन सेंस यूज नहीं करते, बट किसी ने हमको कॉन्फिडेंटली बोल दिया, जिसको कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है, वी रियलाइज सो मच. दिस इज अ क्लासिक केस वेयर आई वांट टू हाईलाइट वन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी नेम वक्रांगी. अ क्लासिक एग्जांपल, यू नो, स्टॉक 2-3 इयर्स से क्लासिक वे में अप ट्रेंड में था. स्टॉक 50 रुपीज से 500 रुपीज कर दिया, एंड यू नो, कंपनी कुछ आधार कार्ड का सब आउटलेट्स ओपन करने वाली है, कंपनी जीएसटी केंद्र ओपन करने वाली है. नाउ ट्राई टू अप्लाई बेसिक कॉमन सेंस के किसी ने वक्रांगी का आउटलेट कभी देखा है? अपन कितने सारे ब्रांचेस देखते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक. ये वक्रांगी का आउटलेट मैंने तो आज तक नहीं देखा था. एंड यू नो, वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क एट 150 रुपीज लेवल कि ये कंपनी में मुझे टिप मिली है, क्या मैं बाय करूं क्या? तो आई डिड द बेसिक रिसर्च कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, और ना कभी इसका नाम सुना है, ना कभी इसका आउटलेट देखा है. तो आई वाज लिटिल फिशी. तो मैंने बोला ये कंपनी में कुछ गड़बड़ लग रहा है, परफेक्टली स्टॉक ऊपर जा रहा है और कोई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है स्टॉक में, नो स्ट्रॉन्ग नेम्स आर होल्डिंग दिस स्टॉक. तो फिर मैंने उसको ना बोला कि तू मत ले, और स्टॉक डबल हो गया 3-6 महीने में. तो ही अगेन केम टू मी एंड ही सेड कि तुमने तो ना बोला था, बट स्टिल मैंने बाय किया था, अभी स्टॉक डबल हो गया है और आज मैं और बाय कर रहा हूँ. मैंने बोला यू आर वेरी लकी, तुमको प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है. माय कॉल वेंट रॉन्ग and he said I'm adding more. So I said be cautious, you know, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है. But you know, then ultimately stock went till 600. तो उसका पैसा 3x हो गया था. And he is so confident now. He is saying मैं तो वक्रांगी में ही इन्वेस्ट करूंगा. You know, वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कंपनी के साथ. And then see what happens. उसका मार्केट कैप 55,000 करोड़ हो गया. What is market cap? बेसिकली अगर कंपनी को कोई खरीदेगा आज, तो उसको 50,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा. तो ऑलवेज सी द मार्केट कैप, यू नो, प्राइस के साथ ये वैल्यू देखो, उसके आपको एक सेंस मिलेगा ये कंपनी का रियल वर्थ उतना है या नहीं. और 55,000 करोड़
काफी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज का मार्केट कैप 25-30 हजार करोड़ होता है और इसका मार्केट कैप 55,000 करोड़ हो गया था. तभी आई वॉज एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल कि ये डिजर्व नहीं करता है उतना. एंड धीरे धीरे देन द ऑल द न्यूज केम आउट कि ये तो सब फेक है. एंड उसके ऑडिटर्स रिजाइन हो गए, सेबी स्कैनर्स हुआ. एंड आफ्टर 1 year what happened, the stock is now at 40 rupees. तो द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सब लोग सोचते हैं कि जब भी वो रिवर्स होगा ना मैं एग्जिट मार दूंगा. तो बट बिलीव मी, वो एग्जिट तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज वो लोअर सर्किट्स लगते हैं. तभी सब सेलर रहते हैं, कोई बायर नहीं रहता है. Those who have actually traded and invested, people would know that कि suddenly market U-turn जब भी मारता है तो there are all sellers. कोई बायर नहीं रहता है, तुम बेचोगे किसको? तो the problem is that people think I will be smart, I will get out at 400 300 में मैं निकल जाऊंगा, but it never happens. वो जो मेरा फ्रेंड है वो अभी भी होल्ड कर रहा है. तो again, don't believe in stories and please apply your common sense. It's your hard-earned money, and people lose big money in such kind of events. So this is the main part which I want to highlight. Don't bet on companies which are not known and don't make big losses. This is again a misconception. Buying cheap. Buying cheap means क्या? लोगों को लगता है इसका प्राइस 2 डिजिट में है ना तो बहुत सस्ता स्टॉक है, ये बाय करना चाहिए. लाइक 2 weeks बैक माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि ये बीओबी और बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक सिर्फ 40 रुपीज है और पंजाब नेशनल बैंक 25 रुपया है. अरे इसमें क्या खोना है, ये तो बाई करना चाहिए, इससे सस्ता कहाँ मिलेगा? सो ये सस्ता महंगा बहुत रिलेटिव टर्म है. देयर इज अ 1500 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट है नेपियंसी रोड में और एक 1500 स्क्वायर फुट का फ्लैट है विरार में. एक का प्राइस है 50 करोड़ और दूसरे का प्राइस है सिर्फ 1 करोड़. नाउ यू विल से कि अरे मैं तो विरार में 10 फ्लैट ले लूंगा यार, उधर 1500 स्क्वायर फुट मिल रहा है 1 करोड़ में और नेपियंसी रोड में तो 50 करोड़ का एक फ्लैट है. तो व्हाई नॉट बाय इन ओनली विरार? इतने सारे कितने सारे फ्लैट्स हो जाएंगे 50 करोड़ में. बट देन यू विल से अरे भाई सी द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. वो एरिया का भाव है, उधर फैसिलिटीज अलग है, उधर क्राउड अलग है. कितने सारे दूसरे पैरामीटर्स होते हैं साथ में. खाली 1500 स्क्वायर फुट वो सेम है, बाकी कितने सारे दूसरे पैरामीटर्स है. तो you see the overall context. So it is always important to see the overall context rather than खाली भाव. लोगों को लगता है 2 डिजिट है तो बहुत सस्ता है, कोटक महिंद्रा बैंक 1200 रुपया है तो बहुत महंगा है. कोटक महिंद्रा नहीं लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा लेता है, ज्यादा शेयर्स मिलेंगे. सो दिस इज एक्चुअली अ मिथ. बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि एक सिंगल डिजिट शेयर प्राइस बताओ ना कोई जो 2 रुपया 5 रुपया हो, बड़ा पैसा डालना है. इट इज अ मिथ. तुम 1000 रुपए का स्टॉक लो या 10 रुपए वाला स्टॉक लो, परसेंटेज गेन कितना मूव होने वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर वो 10 रुपए वाला 20 होता है दैट इज 100% गेन. अगर 1000 वाला 2000 होगा दैट इज 100% गेन. बट लोगों को लगता है वो छोटा प्राइस रहेगा ना तो फटाफट बढ़ेगा. एंड बिलीव मी, इट नेवर हैपेंस. ये सब मिथ है. वो गिरते भी फास्ट है. तो डोंट गो इनटू कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइंग चीप एंड ऑल दैट. वो सुजलॉन 2 रुपए में ले लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं, कभी 2 लाख का 20 लाख हो जाएगा. बिलीव मी फ्रेंड्स, इट नेवर हैपेंस सच वे. वंस इन अ वाइल 200-500 में से एक केस ऐसा होगा एंड यू वांट टू ट्राई दैट लक, देन बेसिकली आई थिंक यू शुड गो टू कसिनो रादर देन मार्केट्स. वहां तुम्हारा लक आजमा के देखो, शायद ज्यादा पैसा बनेगा. जस्ट टू एक्सप्लेन यू द एग्जांपल, जैसे कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है. एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा 45 रुपीज, एक कोटक है. तो जैसे मैं बता रहा था कि अलग अलग सब पैरामीटर्स देखने चाहिए. एंड इफ यू सी जो अपन ने लास्ट वेबिनार में सीखा था रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा 100 रुपया डाल के खाली 2% कमा रहा है और कोटक महिंद्रा 100 रुपया डाल के 12% कमा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन, उसका मल्टीपल हाई रहेगा. तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा चीप नहीं है, वो उसका प्राइस डिजर्व करता है 45 रुपीज और कोटक उसका भाव डिजर्व करता है ऑफ 1100. So don't go into this misconception of cheap and all that, and that is all myth. Averaging. Please don't get trapped into the concept of averaging.
बहुत सारे लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि मेरे को ये कंपनी में से ही कमाना है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वो डबल बाय करते हैं, और नीचे जा रहा है तो वो ट्रिपल बाय करते हैं। अगर कंपनी का भाव नीचे जा रहा है तो कोई रीजन रहेगा। तो व्हाई टू गेट इमोशनली अटैच? मार्केट में और बहुत सारे कंपनीज है। Don't go to the trap of averaging. Let me give you one more example of a very blue chip company on once upon a time, and how averaging can be a big trap. ये एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कंपनी है BHEL, that is BHEL, and I am again sure many of us are having this company in our portfolio, and over a period of years ये देखो एक क्लासिक स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में ही है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे उसका भाव 200 था, नीचे। इट्स अ नवरत्न कंपनी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंपनी है, कैपिटल गुड्स का लीडर है, बट कोई ना कोई रीजन तो रहेगा ये कंपनी नीचे जा रहा है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो अप ट्रेंड चालू होता है ना, यहाँ पे अपना होप इग्नाइट हो जाता है। अभी लगता है ये स्टॉक घूम जाएगा, चलो एवरेज करते हैं, अगेन डाउन ट्रेंड, अगेन ऊपर जाता है, एक होप बिल्ड हो जाता है, अगेन डाउन, अगेन अप। ये क्लासिक केस है ऑफ ट्रैपिंग। पीपल जस्ट इमेजिन, अभी जिसने 200 पे लिया रहेगा और आज भाव 25 रुपया है। सो डोंट गेट ट्रैप्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग। इनफैक्ट आई विल एडवाइज एवरेज अप ट्रेंड स्टॉक्स। जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं उसमें एवरेज करो, जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं उसमें ट्रैप मत हो। जस्ट टू ये जो बेल का मैंने एग्जांपल दिखाया ना, इसका ये लास्ट 5 इयर्स का चार्ट है, एंड बेल इज 90% डाउन, एंड सेम टाइम पे अगर उसको कंपेयर करना है LNT से तो 20% अप है। अगर तुमने LNT में एवरेजिंग किया होता तो शायद यू वुड बी बेटर ऑफ। A lot of wealth has been eroded in a companies like BHEL. So I'm trying to make you understand the concept कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है जो स्टॉक में, उसमें एवरेज मत करो। एक बार जो लॉस है वो बुक करके निकल जाओ, दैट वुड बी अ वाइज डिसीजन रादर देन कीप ऑन एवरेजिंग। इमोशनली अटैच मत हो स्टॉक के साथ। अपन ने स्टॉक के साथ कोई शादी नहीं की है, ऐसा नहीं है अपन हम साथ साथ है उसके साथ करना है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, जस्ट गेट आउट ऑफ द स्टॉक, बुक योर लॉसेस। ग्रज मत रखो, खुद का बायस मत रखो। Now this is a very important part here, of mind management, and कैसे अपना दिमाग चलता है। These are the various emotions, there's greed, fear, excitement, bias, hope. Greed क्या है? लोगों को लगता है कि मेरा कैपेसिटी है 5 लाख वैल्यू का बाय करने का, मैं सोचता हूँ एक काम करता हूँ 20 लाख का ले लेता हूँ एक वीक के लिए, बड़ा पैसा लगा देता हूँ और फटाफट एक वीक में तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। एंड वो लेवरेज कर लेते हैं, उसका कैपेसिटी नहीं है, उसके बाहर वो लेवरेज कर देते हैं, जस्ट ऑन द बेस ऑफ ग्रीड, फटाफट पैसा कमाना है। एक बार तुम सक्सेस हो गए, 2 बार सक्सेस हो गए, बट थर्ड टाइम यू विल एंड अप बैडली। ऑल दिस यू हैव एक्सपीरियंस्ड, बट द प्रॉब्लम इज डिसिप्लिन नहीं होता है, फटाफट पैसा कमाना है। अगर इतना इजी होता है, देन इमेजिन एवरीवन वुड बी डूइंग स्टॉक मार्केट्स। कोई दूसरा कुछ करता ही नहीं, सब लोग स्टॉक मार्केट्स करते थे। तो दैट 95% कैटेगरी, वो लोग लूज करते हैं और वो पूरा पैसा 5% को दे देते हैं। So don't be in that 95%, be in that 5%. Fear, markets, जब भी shaky होता है, तो people get swayed away with the emotions. जैसे मैंने वो साइकिल बताया था इमोशंस का, जो पैनिक रहता है उधर पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देता है, एंड जनरली वो बॉटम रहता है। बहुत सारे लोग एक्साइट हो जाते हैं, जैसे जैसे भाव बढ़ता है, पीपल गेट सो मच एक्साइटेड। अगर कोई ट्रेडर है तो उसको उसका इमोशंस दिखाना नहीं चाहिए। अगर आज मैंने 1 करोड़ का लॉस किया है, तो मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो आपको पता नहीं लगना चाहिए कि आज इसने लॉस किया है। आई नीड टू बी इमोशनलेस। सेम वे, अगर मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो मुझे एक्साइट नहीं होना है, आज मैंने बड़ा एक्साइट किया, बिकॉज योर नेक्स्ट ट्रेड यू विल डबल दैट, तुम्हारा पोजिशन डबल कर दोगे। तो ट्रेडर को देख के कभी पता नहीं चलना चाहिए आज उसने प्रॉफिट किया है या लॉस लिया है, वो इमोशनलेस होना चाहिए। बायस इज अ वेरी डेंजर थिंग। बहुत लोग खुद का एक बिल्ट इन कर लेते हैं, मैंने ये कंपनी लिया है, बहुत अच्छा है ये कंपनी। तुमको अच्छा लगता है, बट बॉस मार्केट को भी अच्छा लगना चाहिए। मार्केट में प्राइस तभी बढ़ेगा व्हेन एवरीवन फील्स दैट कंपनी इज डूइंग गुड। खुद का बायस लेके कोई
you know, it doesn't work. Stock market has its own rules. तुमको वो rules follow करने पड़ेंगे. अगर तुम follow नहीं करोगे, then probably you won't be successful. Hope is the biggest तोप. Hope की तोप जो है ना, वो सबसे डेंजर होती है. अगर तुमने लिया है, सोचा है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या यू नो 1 डे के लिए, और अगर तुम्हारे प्राइस के अगेंस्ट जा रहा है, यू विल वेट. यू थिंक अरे लेट्स वेट फॉर 1-2 डे, लेट्स वेट फॉर 1 मोर वीक. आ जाएगा प्राइस, मेरा भाव आ जाएगा. अगर तुमने डिसाइड किया है 5 डेज के लिए, देन 5th डे यू हैव टू एग्जिट कम व्हाट मे. तो ये होप की तो बहुत बड़ी है, एंड योर मेजॉरिटी ऑफ योर बिगर लॉसेस वुड बी इन दिस होप. नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. ये 3 कंपनीज है ABC, और तीनों है ना 100 रुपीज तक गई थी, और अभी तीनों करेक्ट हो गई है. कंपनी A 70 है, कंपनी 2 62 है, कंपनी 3 51 है. तो माय क्वेश्चन इज कि अभी सपोज यहाँ से बुल मार्केट है, तो विच कंपनीज विल यू इन्वेस्ट? मेरा क्वेश्चन है कि तुम कौन सी कंपनी में बाय करोगे अगर तुम्हें एक कंपनी बाय करनी है. एक कंपनी 70 तक है, एक कंपनी 60 तक है, और एक कंपनी 50 तक है. और अभी मैं बोल रहा हूँ कि तेजी मार्केट शुरू होने वाली है, तो तुम कौन सी कंपनी बाय करोगे? कंपनी A, कंपनी B या कंपनी C? So I am receiving few answers, and some people are saying मैं कंपनी A बाय करूंगा. कोई बोल रहा है अच्छा C बाय करूंगा क्योंकि C बहुत ज्यादा गिरा है. ओके 100 का 50 हो गया है, तो वो बाउंस शार्प आएगा. ओके, so you know this is where the mind management comes here. मोस्टली पीपल आर सेइंग कि वो लोग C कंपनी बाय करेंगे बिकॉज वो 51 प्राइस है, तो वो ज्यादा बढ़ेगा. अभी जब भी तेजी मार्केट शुरू होगी तो ये ज्यादा आएगा. जो मैंने ट्रेंड की बात की थी, यू नो, जो कंपनी सबसे कम गिरा है ना, वो सबसे पहले ज्यादा भागेगा. तो आई वुड पुट माई मनी ऑन कंपनी A, बिकॉज वो ऊपर से बहुत कम गिरा है. दैट मीन्स वो स्ट्रांग है. उसमें कुछ ऐसे रीजंस है, दैट इज वाई यू नो पीपल आर नॉट एग्जिटिंग दैट कंपनी. बट यू नो अवर मेंटालिटी इज, ह्यूमन नेचर इज कि ये ज्यादा गिरा है, ये सस्ता है, ये मैं पहले लेता हूँ, इसमें बाउंस ज्यादा आएगा. टिपिकली अपना मार्केट अभी नीचे है, तो पीपल यू नो सर्च स्टॉक्स कि ये ऊपर से 50% गिरा है, ये ऊपर से 60% गिरा है, इसको लेते हैं. बट आई एम टेलिंग यू, फाइंड दोज कंपनीज यू नो जो अभी भी ऊपर ही है, तो वो और भागेंगे. वो पहले फर्स्ट मूव में वो लोग गेन करेंगे. तो रिमूव दिस साइकोलॉजी ऑफ यू नो बाइंग चीप. जो ज्यादा गिरा है वो ज्यादा उछलेगा, ये सब नहीं होता मार्केट्स में. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ये कंपनी कम गिरा है तो वो बहुत स्ट्रांग है, वो पहला भागेगा. तो बाय दोस कंपनीज विच आर इन अप ट्रेंड. ट्रेंड इज योर फ्रेंड. 3 ट्रेंड रहते हैं मार्केट्स में: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड. ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच आर इन द अप ट्रेंड, गेट आउट ऑफ द स्टॉक विच आर इन डाउन ट्रेंड. और कोई स्टॉक्स रहते हैं वो टाइम पास करते हैं मार्केट में, वो ऊपर भी नहीं जाते हैं, नीचे भी नहीं जाते. दे जस्ट कीप ऑन इन द सेम रेंज. यू नो NTPC, पावर ग्रिड सालों से एक ही रेंज में है. लेट मी गिव यू फ्यू क्विक एग्जांपल्स ऑफ अप ट्रेंड, कि अप ट्रेंड स्टॉक्स को कभी बाय करना चाहिए. दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नेस्ले. यू नो ये स्टॉक देखो, ये लास्ट 5 साल का चार्ट है, एंड धीरे धीरे प्राइस ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है. तो ये जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहते हैं, उसमें जब भी करेक्शन आता है, दैट इज द टाइम टू गेट इन. हमेशा मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा. करेक्ट होता है, ऊपर जाता है, अगेन ऊपर जाता है, करेक्ट हो रहा है, टाइम टू एंटर, फिर ऊपर जा रहा है. तो अभी तुम पूछोगे पता कैसे चलेगा स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है? अगेन अप्लाई सिंपल कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, अप्लाई सम स्कैनर्स. और ओवरऑल ये चार्ट देखो ना, ये चार्ट ही आंसर कर रहा है तुमको कि ये कंपनी इज सॉलिड अप ट्रेंड में. अगर 10 ईयर से ये कंपनी कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में. तो वाई टू गो इन दोज कंपनीज जो 50% गिर गया है, 60% गिर गया है, अनसर्टनिटी है. बेट योर मनी इन दिस अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स, एंड जब ये करेक्ट होते हैं तो बाय एट दैट टाइम. चांस मिलता है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज. ये देखो इधर करेक्शन आया था, तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में 20% करेक्शन आता है ऑन एन एवरेज, बाय दैट कंपनी. अच्छी कंपनीज 20% गिरती है, बाय कर लो. लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल. HDFC बैंक
सबको पता है ये क्लासिक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है. लास्ट 10 years, लास्ट 15 years, 20 years, इट्स ऑलवेज बीन मूविंग अप. ये HDFC बैंक का 10 साल का चार्ट है. क्लासिक अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स. तो जब भी ऐसी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आता है, करेक्शन आता है, सिंपल बाय दैट कंपनी. अभी मार्केट में बहुत बड़ी अभी मंदी आई है, तो ये स्टॉक जो 1300 वाला था अभी 1000 रुपया हो गया है. नाउ आस्क योरसेल्फ, ये 10 साल का पैटर्न देख के बोलो कि नेक्स्ट 2-3 साल में ये क्या लग रहा है तुमको? ये अभी पूरा क्या इधर नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, या ऊपर जाएगा? प्रोबेबली द आंसर इज ये इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो ऊपर ही जाना चाहिए. ये जो मार्केट गिरा है, इधर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओवरऑल इमोशंस, लोगों को फियर आ गया है. तो बाय सच कंपनीज व्हेन देयर इज फियर. सिंपल. डोंट बाय डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स का, कि व्हाई टू गो इनटू दिस डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स. ये है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ये स्टॉक क्लासिक है कि ये गिरता है, थोड़ा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, नीचे जाता है. तो ये जो जब भी बाउंस आता है ना, तो ये निकलने का टाइम रहता है. तो जो स्मार्ट लोग रहते हैं ना, वो लोग इधर शॉर्टिंग करते हैं. दे शॉर्ट दिस कंपनी. तो people on those 5% category, they wait for the bad stocks to give a bounce, and when there is a bounce they go short. So try to understand market dynamics. तेजी मंदी, जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो बाय करना चाहिए, और जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें जब भी बाउंस आता है तो बेचना चाहिए. पीपल आर नॉट यूज टू शॉर्टिंग, बट जो ट्रेडर्स है, जो वो 5% कम्युनिटी में है, वो लोग ये एडवांटेज लेते हैं. इधर कोई न्यूज रहेगा, कंपनी में शायद अभी रिवाइवल हो रहा है, कोई इसमें स्टेक लेने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब स्टोरी रहती है. अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, एंड द कंपनी अभी आज 10 रुपया है. तो मार्केट ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटी ऑन द बोथ साइड, बाइंग एंड सेलिंग. यू नीड टू बी क्लियर, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है. और एक एग्जांपल देता हूँ डाउन ट्रेंड का. दिस इज द कंपनी रिलायंस कैपिटल. आई एम श्योर ये भी स्टॉक बहुत लोगों के पास रहेगा. 800 रुपीज, एंड टुडे द स्टॉक इज एट 10 रुपीज. बीच में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बाउंसेस आते हैं. डोंट गेट ट्रैप. अल्टीमेटली इट गोज डाउन. तो स्मार्ट पीपल शॉर्ट, बट ये पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली इधर शॉर्ट करना है या इधर शॉर्ट करना है? तो एज यू आर ट्रेडर, यू कनेक्ट द न्यूज. मैंने जैसे वो आरकॉम के एग्जांपल में दिखाया था, कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, इमोशंस, लोग इमोशनल हो जाते हैं, यूफोरिक हो जाते हैं. अप्लाई कॉमन सेंस एंड गो कॉन्ट्रा. these are very difficult things, and as you practice, as you trade, as you connect all the dots, you will realize. तो इसके लिए ये सब लोगों को नहीं जमता है, एंड इसके लिए वो 95% people make loss and 5% people earn, because this is very difficult. तो तुमको अगर ये सब नहीं जम रहा है, don't go into all this. My request is don't buy in these stocks. Problem is कि people buy these stocks. अगर तुमको शॉर्ट करना नहीं जम रहा है, ठीक है, but please don't buy. तुम्हारा हार्ड अर्न मनी यू विल गेट ट्रैप्ड हियर. So be with the stocks which are uptrending, get out of the stocks which are downtrending, and बहुत सारा टाइम ऐसा रहता है कि मार्केट साइडवेज रहता है, मार्केट इज नॉट डूइंग एनी एक्शन. So just relax in that time. Now how to take advantage of price action? As I explained to you, like there are so many emotions which drive the market. तो वो इमोशंस का अपने को एडवांटेज लेना है. DHFL जो मैंने एग्जांपल दिखाया, स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग में था, फिर सडनली न्यूज आता है कि शायद रिलायंस बाय करने वाला है, शायद कंपनी का स्टेक 200 रुपए में कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर लेने वाला है. देन अप्लाई योर कॉमन सेंस. व्हाई वुड रिलायंस बाय DHFL? सब कंपनीज में रूमर्स में अल्टीमेटली रिलायंस का नाम आता है, रिलायंस टेक ओवर करने वाला है. अरे रिलायंस खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, वो ये सब छोटी कंपनीज क्यों बाय करेगा? तो वो जो इमोशंस होते हैं और जब भी प्राइस मूव होता है, टेक एडवांटेज ऑफ इन योर फेवर. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे मार्केट में, एंड इफ वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी. इफ यू वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी एंड देन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, देन गो बिग. बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है ग्रोथ ट्रेडिंग करना ही चाहिए. देयर इज नो सच रूल. साल में एक ट्रेड ही काफी है,
एक ट्रेड भी करोगे बड़ा तो अच्छा पैसा बन सकता है. People keep on trading. 9:15 बजे मार्केट शुरू हुआ नहीं कि धाड़ 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 बाई सेल. ऐसा नहीं होता है. You know your emotions, you will get blank. Let me show you, you know, प्राइस एक्शन का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है. एक क्लासिक एग्जांपल, मारुति का ये न्यूज है. मारुति में जब भी ये 2012 की बात है, मारुति में ये न्यूज आया था कि वहां का एचआर मैनेजर को जला दिया था और अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो गई थी एंड लेबर इश्यूज हो गए थे. तो इतना बड़ा ये पैनिक हो गया था मारुति कंपनी में, लेबर इश्यूज. वो हरियाणा में प्लांट में कुछ टसल हो गया था लेबर्स और मैनेजमेंट का एंड एक अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी. तो नाउ जस्ट थिंक के मारुति का रिएक्शन क्या होगा मारुति स्टॉक का ये न्यूज पे. ये 2-3 महीने से न्यूज चल रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वैसे, एंड वन फाइन डे एक डेथ हो जाती है. तो क्या होगा प्राइस एक्शन इस दिन. लेट्स जस्ट सी द चार्ट कि उस दिन मारुति ने क्या रिएक्ट किया था. भी ये 2-3 महीने से ये प्रॉब्लम्स है और ये जो पैटर्न है, यहाँ से ये न्यूज सब चालू हुई थी कि कुछ तो गड़बड़ है. लेबर लोग बोल रहे हैं वी विल नॉट वर्क इन द कंपनी एंड प्राइस नीचे जा रहा है. और ये जो दिन है, ये दिन डेथ हुई थी. यहाँ पे ये न्यूज आया था कि एक एचआर मैनेजर हैज बीन शॉट, वो उसको जला दिया था. नाउ एक्सट्रीम फियर, 1500 वाला स्टॉक 1000 हो गया. नाउ आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि वेदर दिस इवेंट ये परमानेंट कंपनी बंद हो जाएगा क्या मारुति, इतना बड़ा कंपनी. एक लेबर इश्यू हुआ है, टेम्पररी बहुत प्रॉब्लम्स है, बट या इस इवेंट से कंपनी बंद हो जाएगा. एक्सट्रीम फियर, यू नो, एक महीने में स्टॉक 1400 से 1000 हो गया. दिस इज द टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस एक्शन ऑफ इमोशंस. लोग फियर में है. वी नीड टू बी ग्रीडी एट दिस पॉइंट एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, वो दिन बॉटम बन गया स्टॉक का. उसके बाद वो स्टॉक 1000 के नीचे नहीं गए आज तक एंड स्टॉक फिर 10,000 हो गया था. So this is a classic example. अगर तुम, if you apply simple common sense, you know, apply शांति से, don't get into this news thing. News जब भी public होती है, believe me, there are many smart people who already know that they are doing the opposite thing. Good news, bad price action. बहुत बार देखा होगा कि बहुत बढ़िया न्यूज आती है और मार्केट करेक्ट हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? तुमको क्या लगता है? बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये होने वाला है. आरबीआई कुछ करने वाली है. आरबीआई रिसेंटली 2-3 बार ऐसा हुआ कि आरबीआई कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है, एक वीक से घूम रहा था. तो मार्केट एंटिसिपेशन में बढ़ता है. जिस दिन अनाउंसमेंट आता है करेक्ट होता है. तो बिकॉज वो जो स्मार्ट मनी है, बायर्स, वो सब एग्जिट कर रहे हैं एंड यूफोरिक पीपल बाय कर रहे हैं. तो सी द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, एनालाइज. तो अगर तुमने पहले बाय नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, बट इवेंट के बाद बाय मत करो. माय प्रॉब्लम इज पीपल गेट इनटू दैट टाइम एंड मेक लॉसेस. So take advantage of such price action. Let me give you a live example once again of Bharti Airtel. Recently, अभी एक न्यूज आया था कि कंपनी को, वोडाफोन और भारती को बहुत बड़ा ड्यूज भरना है, एजीआर, लाइक उसका पास्ट रेवेन्यू का पेनल्टी भरना है. और स्टॉक ऑलमोस्ट 30-40% करेक्ट हो गया कि उनको बहुत बड़ा पैसा देना है. ओके, so now let's understand the context कि ये suddenly क्या हो गया. And अब now let's see the Bharti chart. उस दिन ये स्टॉक ने लो मारा 360 का. Suppose you are not investor in Bharti, you are not a trader in Bharti, you are just watching this कि ये न्यूज हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए. तो 1-2 दिन वेट करो क्या हो रहा है. Then you see कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है. इतना बड़ा न्यूज आया कि कंपनी को 40,000 करोड़ भरना है और स्टॉक वो दिन इंट्राडे में 360 गया, फिर दूसरे 2-3 दिन में वापस ऊपर. बॉस, ये प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ये तो आगे कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है. ये सिंपल कॉन्टेक्स्ट है. जस्ट सी द प्राइस एक्शन. इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज के बाद कंपनी नीचे नहीं जा रहा है. इट्स अ टाइम टू बाय. लोग जब भी फियर है, बी ग्रीडी. तो यू नो, बैड न्यूज, गुड प्राइस एक्शन. इट्स टाइम टू गेट इनटू द स्टॉक.
So these are the opportunities which market give. ये every day ये सब नहीं होता है. ये once in a month, twice in a month. वैसे market give opportunity. It's up to us, how to take it. Be patient, wait for your opportunity. So this was the overall context of the market. Market में कैसे सब action होता है and how you need to be positioned in order to take advantage. So just if I want to recap, what all things we have just learned today. Few things we done के euphoria में buy नहीं करना चाहिए. First and foremost thing is your hard-earned money. Don't buy in euphoria. तुम्हारा स्टॉक अगर तुम्हारे कॉस्ट से 25% डाउन होता है, एक अलार्म बजना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. Ask the question, मार्केट गिरा इसकी वजह से हो रहा है. Is the market falling? That is why my stock is falling. Is there any company specific news? Results खराब आए हैं, सेक्टर का कोई न्यूज आया है. इसका आंसर होना चाहिए. और अगर इसका आंसर नहीं और फिर भी प्राइस गिर रहा है तो और डेंजर है. विदाउट एनी रीजन इफ द प्राइस फॉल्स दैट इज मोर डेंजरस. तो बी व्हेन आपके कॉस्ट से अगर 25% प्राइस गिरता है, स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है. So don't buy into euphoria when the price falls. Ask the question. एक रूल मैं आपको बताता हूँ. आपका जो भी कैपिटल रहेगा उसका 3% आपका कैपिटल का लॉस एक स्टॉक में कभी नहीं होना चाहिए. इफ यू आर अ इन्वेस्टर से ऑफ 1 crore पोर्टफोलियो आपका है तो एक कंपनी में 3 लाख का लॉस नहीं होना चाहिए. फॉलो दिस रूल. ये रूल आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचाएगा. बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 कंपनीज पूरा प्रॉफिट लेके जाती है, वो पेनी स्टॉक हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं. अगर आप ये रूल अप्लाई करोगे कि एक कंपनी का लॉस 3% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो लेवल पे नहीं होना चाहिए, बुक योर स्टॉप लॉस, गेट आउट ऑफ द स्टॉक, आप बच जाओगे. डोंट एवरेज डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स. दैट इज व्हाट वी लर्न टुडे. वीकर स्टॉक्स में एवरेज मत करो, अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एवरेज करो. जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिले बाय करो. वीकर स्टॉक्स में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले सेल करो. दैट इज व्हाट वी लर्न टुडे. टेक एक्शंस, टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस एक्शंस. मार्केट में बहुत मूवमेंट्स होते हैं बिकॉज ह्यूमन नेचर है, वी आर ऑल इमोशनल पीपल and you can take advantage of the emotions in market and earn money, but only 5% people can do it. So we need to develop that character. That is what we learned today. So this is all about the market pulse and dynamic. My sincere request is do not make big losses. छोटा profit करो. Don't be greedy and don't lose your hard earned money. बहुत सारा compromise करके बहुत सारे दूसरे if you want to go to a foreign trip तुम compromise करते हो, but stock easily ले लेते हो. 2-5 लाख का stock easily buy कर लेते हो. 30-40% नीचे जाता है, you are not bothered. Don't do that. It's not good. So this is all about market pulse and dynamics. And I request anytime if you have any queries into how to manage all these emotions, you can always be in touch with our team. And I hope this webinar helps in your future career of investing and trading, where you don't get trapped. Understand market psychology, and don't be on the opposite side. This was all about market pulse today, and I'm happy to take questions. Thank you, Swapnil, for covering such a personal and interesting topic. I would like to also thank all attendees for sharing their valuable time with us. If anyone has questions, kindly put it in the question answer Q&A box or the chat window too, and that are more more towards fundamental research or sectoral. If there are any questions that are left unanswered today, you can also WhatsApp them to us on the following number, and we'll make sure that the research team gets them answered to you at the earliest. Also, we kindly follow us on all our social media handles, including LinkedIn, Facebook, Insta, and YouTube. I think the floor shall be open for any question answers that the attendees wish to ask. Swapnil, there was one person Kishore Sampad, who asked a question: how to identify genuine 10x shares? So let me give you a perspective. ये जो concept है multi-bagger. Day one पे, believe me, day one पे no one knows कि ये company 10x होने वाला है या 5x होने वाला है.
Not even Warren Buffett know this. Over a period of time, when you build conviction, and step by step, the companies do well. तो जो holding है, वो you have to ride with that company. Believe me, day one पे no one knows ये multi bagger है. It's a process. वो companies का performance better होते जा रहा है. You track those companies. वो सब right steps कर रही है. वैसे multi bagger होता है. Day one पे no one knows what is a multi bagger. Basic parameters है, strong management, visionary management. उसकी सोच बढ़िया होनी चाहिए. वो sector में बहुत सारा scope होना चाहिए. ये सब basic checks है where the chances of being a multi bagger are high. But there is no rule as such कि ये टिक होंगे तो स्टॉक मल्टी बैगर होगा. ऐसा नहीं होता है. And let me give you an example. I will again share my screen. बहुत लोग अभी आइडिया का जो प्राइस एक्शन है, आई थिंक एवरीवन इज इंटरेस्टेड. स्टॉक जब भी ₹4 था फॉर लास्ट 6-8 months, नो वन वाज बाइंग. एंड अभी ₹10 हो गया. इमोशन स्टार्टेड गेटिंग इन. एवरीवन वांट्स टू बाय आइडिया. Why? Because ये सडनली स्टॉक बढ़ गया है. मेरे में ग्रीड आ गई है. अरे ये स्टॉक तो भाग जाएगा. अरे जब भी ₹4 था तभी तो तुमने नहीं लिया था, तो आज सडनली क्या हो गया? लेट्स चेक द प्राइस, लेट्स चेक द चार्ट एंड कनेक्ट हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स. न्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं. एक लाइव एग्जांपल फॉर द एक्चुअली कैसे एनालाइज करना चाहिए. लेट्स सी द लेटेस्ट लाइव चार्ट ऑफ वोडाफोन आइडिया. So this is the chart of idea. ये लास्ट 6 महीने का चार्ट है. स्टॉक वाज लैंग्विशिंग इन अ सेम रेंज, ₹3-4 में घूम रहा था. सडनली अभी क्या हो रहा है? लास्ट 2 वीक में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है या कोई. तो फर्स्ट टेक सी द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. ओवरऑल स्टॉक क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है इधर? ये स्टॉक तो नीचे 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 जा रहा है. ये स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है. फाइन. आज क्या हो रहा है? लास्ट 2 वीक में प्राइस सडनली बढ़ रहा है. तो ट्राई टू फाइंड द न्यूज कि कुछ आया है क्या स्टॉक में. हाँ, तो वो न्यूज आ रहा था कि वो ब्लैक रॉक बाय करने वाला है अभी ₹28 में. वो व्हाट्सएप घूम रहा था. जिस दिन ये व्हाट्सएप घूमा उसके नेक्स्ट दिन स्टॉक ₹12 वाला ₹10 हो गया. तो इमोशंस, लोगों ने ट्रैप में लिया. बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज अभी देखो क्या हो रहा है. फिर वो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था थर्सडे को कि वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. तो ये सब न्यूज इवेंट्स, अगर तुम्हें ऐसी फैंसी आइटम में ट्रेडिंग करनी है तो न्यूज के साथ बहुत जुड़ा रहना पड़ेगा. यू नीड टू बी अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन. तो थर्सडे को न्यूज आया कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तुमको हम लोग 20 साल का रिलीफ कैसे दे. प्रमोटर को गारंटीज देना पड़ेगा. पैसा 20 साल के बाद तुम दे पाओगे कि नहीं उसका क्या श्योरिटी है. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई नहीं किया बट बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए और स्टॉक फिजल आउट हो गया. बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज फ्राइडे को क्या हुआ. फ्राइडे को स्टॉक नीचे ओपन हुआ और वापस ऊपर आ रहा है. एंड नाउ अगेन देयर इज हियरिंग ऑन थर्सडे. नेक्स्ट थर्सडे को वापस हियरिंग है. तो ये जो प्राइस का मूवमेंट है ये मुझे कुछ दिखा रहा है कि बॉस समथिंग इज देयर. अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसअलाउ करना होता तो ये दिन ही कर दिया होता. ये ट्रैप है. ये इधर लोग होप छोड़ देंगे कि ये कुछ गड़बड़ है, पीपल विल गेट आउट. बट ये प्राइस मुझे दिखा रहा है कि कुछ तो आने वाला है बॉस. तो अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं सोचूंगा कि चलो अगर बाय करना है तो मैं इधर बाय करता हूं. मैं स्टॉप लॉस इधर का रख दूंगा कि ये लेवल आएगा देन आई विल गेट आउट बिकॉज इधर से प्राइस टर्न हुआ है. तो सिंपल क्लियर रखो इधर बाय करने का, इधर स्टॉप लॉस. देन डोंट बी इमोशनल कि मैं होल्ड करूंगा. फिर हो सकता है स्टॉक वापस ₹3 हो जाए. नो वन नोज दैट. आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अगर तुमको ट्रेड करना ही है तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखो, न्यूज देखो, एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो. बाय करने से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो एंड देन यू कैन एंटर. प्रॉब्लम इज कि ये सब क्लैरिटी नहीं होता है. पीपल जस्ट बाय एंड जब वो 20% फॉल होता है तो वो पैनिक हो जाता है कि अभी तो क्या करूं एंड देन वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो जाता है. तो ये नेक्स्ट वीक वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इन आइडिया. आई डोंट नो, प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा.
बट मैं ट्रेड करूंगा तो स्टॉप लॉस के साथ करूंगा, वो क्लियर है. दिस इज हाउ टू टेक अ डिसीजन. कॉन्टेक्स्ट देखो, प्राइस एक्शन देखो, इवेंट्स आ रहा है वो देखो, एंड be clear like what you want to do. One more person asked about Bajaj Finance and what, like basically how even though such a fundamentally strong company and it's currently downtrending. So what is your view on Bajaj Finance? So again, अगर overall context देखोगे तो Bajaj Finance was an uptrending stock, and suddenly because of all this lockdown thing, so suddenly एक uptrend से stock downtrend में आ गया. Now if your holding period is say more than 1 year, 2 year, then ask the question to yourself कि ये company का operations 6 महीने बाद भी वापस शुरू नहीं होगा, ये company का growth खत्म हो गया है. ask basic questions. लॉकडाउन खुल जाएगा 1 साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद. इफ योर आंसर इज यस, बाय दिस कंपनी. अभी मार्केट पूरा फियर है बजाज फाइनेंस में. ये स्टॉक तो गया, अभी 50% करेक्ट हो गया. मैंने भारती का एग्जांपल दिखाया था, जो वो फियर हो गया था, बट उसके बाद देयर वाज एन अप ट्रेंड. मारुति का एग्जांपल दिखाया था. तो न्यूज और इवेंट हमेशा अलग अलग रहेंगे. अपने को कॉमन सेंस अप्लाई करना है, प्राइस एक्शन का एडवांटेज लेना है. So maybe after 2 years, Bajaj Finance probably would be 4,000, 5,000. So 2,000 से 5,000 in 2 years is a huge gain. So take advantage of the price action. But problem क्या है, लोग F&O में ले लेते हैं, लोग डायरेक्ट फ्यूचर बाय कर लेते हैं, फिर वो 50 रुपीज 100 रुपीज में शेक हो जाता है. तो जब भी प्राइस एक्शन फियरफुल रहती है तो स्लोली इन्वेस्ट करना चाहिए. एट वन गो पे सीधा फ्यूचर का लॉट नहीं लेना चाहिए. One more participant, Krishan Kumar, asked, how do you draw a trend line to identify the trend? क्लासिक है. टेक अ longer frame, longer term का चार्ट देखो पहले. 10 years, 20 years. एक पूरा एक स्टोरी क्रिएट करो. कि जितना लंबा ट्रेंड रहेगा तुमको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, ये कंपनी कुछ अच्छा कर रही है कि नहीं. बिकॉज 1 year 6 months में क्या रहता है, मार्केट डायनामिक्स ऊपर नीचे होता है, तो वो कंपनी का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है. बट 5 year 10 year में कंपनी का खुद का फंडामेंटल्स पे वो ड्राइव होता है. तो मेक अ लॉन्गर स्टोरी. अभी नेस्ले का चार्ट देखा तो 20 years से अप ट्रेंड है, तो नेक्स्ट 5 years अप ट्रेंड कंटिन्यू क्यों नहीं होगा. तो वैसे build a longer story, 5 year, 10 year, 20 year, and then join the dots, then you will get an idea. तो मार्केट में वैसे अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 20 years बहुत कम रहेंगे. इसके लिए मल्टी बैगर्स बहुत कम रहते हैं. डाउन ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स बहुत मिलेंगे, और साइडवेज ट्रेंड वाले भी बहुत मिलेंगे, बिकॉज वो कंपनी एवरेज कर रही है. एवरीवन कांट डू वेल. सब कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना सकती है. तो बी विद द स्ट्रॉन्गर ट्रेंड कंपनीज. वो see a 5 year 10 year view. One more question was from Surendra Sav, who was asking any advice regarding percentage of stop loss and gain profit percentage that one should consider in normal calculation. Sure. So this is a very interesting question कि stop loss कितना रखना चाहिए. Now the answer to this, stop loss can be different for every person, but a simple reply is whenever you enter a stock, दो चीज पहले डिसाइडेड होनी चाहिए बिफोर एंट्री. तुम्हारा टारगेट क्या है और तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या है. इफ यू आर अ ट्रेडर, बिफोर एंटरिंग द स्टॉक ये दो चीज डिसाइड होनी चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉस. इसको बोलते हैं रिवॉर्ड. लाइक योर टारगेट इज योर रिवॉर्ड एंड योर रिस्क इज द स्टॉप लॉस, राइट. तो रिवॉर्ड और रिस्क ये हमेशा रेशियो मोर देन 2 होना चाहिए. मीन्स इफ यू बाय अ स्टॉक एट 100 रुपीज, अगर तुम्हारा टारगेट 110 है, दैट इज 10 रुपीज गेन, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 5 होना चाहिए, 5 रुपीज डबल. तो तुम्हारा रिवॉर्ड हमेशा 2 times होना चाहिए ऑफ स्टॉप लॉस. तो ये रेशियो अगर तुम मेंटेन करोगे ना, तो यू विल नॉट एंडिंग अप इन बिग लॉसेस. एंड तुम्हारा स्ट्राइक रेट अगर 70% भी रहेगा, तो अल्टीमेटली यू विल बी इन प्रॉफिट. तो डिसाइड योर टारगेट, डिसाइड योर स्टॉप लॉस, एंड द रिस्क टू रिवॉर्ड शुड बी 2:1 minimum. That way decide your stop loss and target.
One more question. This is a little more stock specific. People are asking about DHFL. What is our view of DHFL and IDFC? And will IDFC be a multi-bagger in say 5 to 10 years? So DHFL is probably is gone now. खत्म हो गया कंपनी. तो अभी उसका एब्सोल्यूट प्राइस जो भी अभी 15 रुपया रहेगा तो वो 15 का 20 होता है, फिर 10 रुपीज होगा, वैसे सब होगा. बट डोंट एक्सपेक्ट DHFL टू बी 100 रुपीज नाउ. It's the probability is less than 1%. So the DHFL, write it off. There is no hope on DHFL. IDFC again, downward trending stock is a classic downward trending stock. इसमें जब भी bounces आएंगे, it's time to get out. Simple. Go into better uptrending stocks than IDFC and all. I'm Devesh, talking about IDFC. I am not talking about IDFC Bank. There are two stocks, IDFC Limited and IDFC First Bank. I gave view that was on IDFC Limited. thank you, Swapnil. There's one more question from Devesh Chaturvedi. He kind of asked the question. Many good analysts say pharma market is undervalued, but there is also euphoria around it. Should we invest in it or avoid it? Okay, very interesting question. Like there is euphoria. There is right. In short space of time, like last 3-4 months, suddenly there is a euphoria in pharma stocks. There are two reasons for this. Because the broader markets are not good, so things which are good, people are extrapolating that. That telecom is best, pharma is best, because बाकी सब अभी अच्छा नहीं कर रहा है. So everyone is going into rushing into pharma stocks. So whenever there is such case, थोड़ा cautious view से देखो. Don't jump in कि pharma सब लोग बोल रहे buy करना चाहिए. हो सकता है बहुत सारा time correction आए. Because when everyone thinks the same line ना, तो सब लोग ने वो यूफोरिया, वो प्राइस ऊपर ऊपर करके बाय कर लिए है. मे बी स्मार्ट हैंड्स एग्जिट कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है ये नेक्स्ट 6 महीना 1 साल सेम ब्रॉड रेंज में ही रहेगा. तो दे लुक फॉर अनदर कंपनीज. तो व्हेन देयर इज यूफोरिया, डोंट जंप इन. थोड़ा बाय करो, टेस्ट करो. तो इससे क्या होगा, दो आउटकम हो सकते हैं. या हो सकता है फार्मा भाग जाएगा. That is one possibility. Second possibility is 6 महीना 1 साल तक फार्मा कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है, सेम ही रेंज में रह रही है, और मे बी इट्स अ ट्रैप, शायद नीचे भी जा सकता है. तो माय एडवाइस हियर इज, अगर एक बार अपने को बड़ा प्रॉफिट, एक वो लास्ट लेग का प्रॉफिट मिस हो जाए तो चलेगा, बट डोंट गो इनटू यूफोरिया मोड. अगेन द प्रॉब्लम इज दैट ओनली, वो यूफोरिया अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक बार प्रॉफिट थोड़ा कम होगा चलेगा, बट बड़ा लॉस मत करो. ये हैबिट डेवलप करो. बी अहेड ऑफ द कर्व. सब हो जाने के बाद डेजर्ट जब भी सर्व हो रहे तभी पार्टी में एंटर मत हो, वो लास्ट लेग है. थैंक्स. एनी मोर क्वेश्चंस? Prakash Kumawat had a few questions. I'm unable to find them. Mr. Prakash Kumar, can you please put them in the question box, Q&A box again once so we can cover that point? And many people are asking questions कि ये मार्केट कैसा लग रहा है, एंड मार्केट नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा. लेट मी गिव अ पर्सपेक्टिव कि एक्चुअली लास्ट 3 साल में क्या हुआ. ये कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम तो अभी आया लास्ट 3 महीने में. लेट मी गिव अ कॉन्टेक्स्ट, लास्ट 3 साल में क्या हुआ. एक्चुअली लास्ट 3 years वी आर इन अ बेयर मार्केट, ब्रॉड बेस्ड मार्केट. मतलब अगर अपन पूरा 3000 4000 कंपनीज देखे, मिड कैप स्मॉल कैप सब मिला के, तो वी आर इन अ बेयर मार्केट. मंदी चल रही थी, बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी न्यू हाइज बना रहे थे. निफ्टी का कंपोनेंट वो सिर्फ 50 स्टॉक है. उसमें से जो हैवी वेट है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक वगैरह, वो बहुत ऊपर जा रहे थे. तो बहुत डिस्कनेक्ट था मार्केट में. इंडेक्स ऊपर जा रहा था, बट ब्रॉड बेस्ड मार्केट नीचे जा रहे थे. आपका अगर एसआईपी रहेगा मिड कैप पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड में, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप नीचे दे आर एट नेगेटिव वैल्यू, और खाली लार्ज कैप स्कीम्स परफॉर्म कर रही है.
तो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करो कि ओवरऑल लास्ट 3 साल में क्या हुआ. तो वी आर इन अ बेयर मार्केट, मंदी चल रही थी, एंड ये जो फाइनल कोरोना अभी हुआ तो पैनिक हो गया. दिस आई पर्सनली फील ये लास्ट लेग है कि जहां अभी एवरीवन हैज लॉस्ट होप कि ये मंदी अलग है, ये इस टाइम तो सब गया. एंड पैनिक होता है ना, तभी ही बड़ी मंदी खत्म होती है. आई एम नॉट सेइंग कि 3 महीने बाद तेजी शुरू हो जाएगी. आई एम सेइंग मंदी खत्म हो गई है. नाउ ग्रेजुअली व्हेन अप ट्रेंड स्टार्ट्स, जंप इनटू इट. अप ट्रेंड शुरू हो गया है? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज थिंग्स आर वेरी डाइसी अराउंड. कोरोना रिलेटेड एस्केलेट होगा, डेस्केलेट होगा, वी डोंट नो. बट बड़ी मंदी खत्म हो गई है बिकॉज ये पैनिक क्रिएट हो गया है. मंदी तभी खत्म होती है जब भी पैनिक होता है, और पैनिक हो गया है. मार्केट ने लोअर सर्किट मार दिया है. मोस्ट प्रोबेबली लोअर सर्किट इज ए इंडिकेशन पैनिक हो गया है. Thank you, Swapnil. Prakash ji had a question. What is the P icon in the charts? P blue that we see on top of the red bar. ये What is this? Yes. जस्ट वन. ये एक्चुअली ये जो साइट है, मतलब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स है. इसका नाम इधर सपोज इज शोइंग एंगल्फ बेरिश. ये सब पैटर्न्स है जो टेक्निकल्स इफ यू फॉलो तो उसमें आपको समझेगा. तो if you are following technicals, then only look at this. This is nothing related to any news or any event. ये सब indicators है technical parameters पे. Okay. I think there are quite a few stock related queries also. As I mentioned earlier, anyone has any additional stock specific questions that we might not be able to cover in this webinar, kindly drop it across our WhatsApp channel and we sure get back to you. So can you just shift to the WhatsApp number so people can see that WhatsApp contact details, please? So we are, as I mentioned earlier, we are on WhatsApp and Telegram both. There are also people who asked us, where can I see what live, do we have any live events? Yes, on Facebook, every morning, 8:55, we have a live Facebook live where our technical team speaks about the day ahead. So I would request everyone to please, again, go on to our social channels, Facebook, Instagram, YouTube, where all of our previous webinars are also kept, and even LinkedIn for that matter. I think due to time constraints, we shall end this webinar at this moment. Thank you for all the attendees for coming along, and thank you, Swapnil. Thank you, everyone. We leave the webinar, we leave the panel on, though, if anyone wants to leave any questions, and we can again get back to them personally. Thank you so much.